कम स्कोर आ रहा है, क्या करूँ? रिपीट करूँ या ना करूँ? मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो नमस्कार, नमस्ते एंड जय जिनेंद्र दोस्तों. माई सेल्फ Disha Abhay Tathid. I am a first year MBBS student currently studying at BJ Government Medical College, Pune. I have given my NEET last year with a score of 655 out of 720 and AIR of 3613. साथ में 2023 को आप सबकी नीट एग्जाम हुई. आप सबने उसे अच्छे से फेस किया होगा. किसी के लिए पेपर बहुत अच्छा रहा होगा तो किसी का स्कोर बहुत कम आ रहा होगा. बट नीट हो गई, अब क्या करें? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, रिपीट करूँ या ना करूँ, एंड वगैरह वगैरह. आई एम हियर इन दिस वीडियो to resolve all your doubts and questions as much as I can. We will discuss here the harsh reality of selection and what are the things that we should do after NEET, we should take our decisions if you have a low score on boundary line or a high score. So let's get started. और इवन जिन्होंने ऐसा नीट नहीं भी दिए वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अच्छी तरीके से गाइड कर. जो भी डाटा, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है, आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस डेटा. What thing really matters after NEET and what is most important is that I'm gonna talk in this video and you should take that decision which will benefit you the most. We will start by discussing the harsh reality of selection. We everyone know that the students appearing for NEET is this much, while the selection is only this much. Every year, 20 lakh students appear for NEET. This year, 21 lakh 80,000 students appeared for NEET, out of which 10 lakh will get to qualify. But what about the MBBS seats? The total MBBS seats in India is only 1 lakh, including the government and private MBBS seats. So if we see the ratio for the government seat, it is 1:20. That is, for every one government seat, there are 20 students fighting around for that seat. So the competition is really tough, and year by year, the number of students appearing, the cutoff is going to increase, and even next year, if you take a drop and your score increases, but the rank may still remain the same due to this such a high tough level of competition. चलो अभी हम सेक्शन वाइज शुरू करते हैं कि नीट के बाद आप लोग क्या करोगे. तो जिन बच्चों का स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, मतलब सिलेक्शन से काफ़ी कम है, जिनका स्कोर 200 300 है, लो स्कोर है, उनको बताया कि उनको अभी MBBS सीट नहीं मिल सकती. तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ इज़ कि डिसीजन लेना. और सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा कि हमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो हियर मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस रखूँगी. वो कंडीशंस को एनालाइज करके आपकी सिचुएशन किस कैटेगरी में फिट हो रही है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको रिपीट करना है या नहीं करना है. और इट इज शुड आई रिपीट? येस, आई शुड. When? If you have the answer yes to the following three conditions, then you should definitely repeat. First condition is your will. If you always wanted to become a doctor and you are here in this field on your own will, then you should repeat. If you have low score this time, I know, but if you still have the enthusiasm and patience to study for these year of drop and the next 5 years of your MBBS study, you can go on because it's your dream and you'll survive to complete it. But if it is your dream, the dream does not require only sleeping. So सिर्फ सोने से नहीं होगा. You have to give your 200% the next time you start preparing. Next condition is that if you are depends on your score. If you are a fresher, then you should definitely give yourself one chance and try your luck. Because जब हम freshers होता है तो बहुत सारे पहले ऐसे conditions होते हैं कि जैसे lack of guidance, lack of preparation, lack of resources, या फिर lack of proper knowledge of competition.
इसकी वजह से हम फर्स्ट ईयर में जब फ्रेशर होते तब नहीं कर पाते. तो टेकिंग 1 year ड्रॉप टू प्रूव योर सेल्फ is all okay. You can go forward for your repeat. But on the other hand, if you are a repeater, even you have repeated for the first time, second time, you can still have one extra chance of drop only if your score is above 400 or 450. If your score is touching 450, surely you have that potential that next year you can score above 550. But it all resides on you. It takes a lot of efforts to increase that 100 marks of score. The third condition when you should repeat is when you do not have a paying capacity. हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास है और जिनके पास प्राइवेट कॉलेजेस की फीस दैट इज़ 10 लाख पर ईयर इतनी हम नहीं भर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते. तो उन्होंने और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एंड दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप. आपको ड्रॉप लेना चाहिए और उलट आपको इस चीज़ को एडवांटेज बनाना चाहिए. मनी कैन बी योर मोटिवेशन कि हम भी किसी से कम नहीं और हम भी कर सकते हैं. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग with you 3 conditions, and these 3 conditions you should never repeat. First, if you never wanted to become a doctor, आपकी खुद से कभी भी इच्छा नहीं थी कि आप इस फील्ड में जाएं, लेकिन आप पेरेंट्स या फिर किसी और प्रेशर की वजह से अगर इस फील्ड में हैं तो प्लीज़ रिपीट मत कीजिए. आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दिए हैं, गिविंग नीट एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर माई करियर. तो दिस इज़ नॉट द थिंग. ऐसा नहीं होगा. आप उस विशियस साइकिल के रिपीट में फंसते जा रहे हैं. आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप बार बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और खुद को लो फील करा के क्यों ले रहे हैं. नेवर जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री. सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है. आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो स्किल है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए. डोंट एवर रिपीट इफ़ यू डोंट, मतलब आपको खुद से अंदर से अगर डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है तो प्लीज़ आप रिपीट मत कीजिए. आपका स्किल, आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है, प्लीज़ वहाँ पे जाइए. स्टिल यू हैव द चांस एंड अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू इट. सीन वेरियस एलुमनाइज फ्रॉम आर कॉलेज, वो डॉक्टर तो बन गए, दे आर MBBS, बट अभी भी वो कुछ अलग काम करे. जैसे कोई एक्टर है, कोई किसी का अपना खुद का बैंड है, तो कोई राइटर है. खुद को एक्सप्लोर कीजिए, फाइंड आउट योर ओन एंड स्टिल यू कैन शिफ्ट टू दैट कोर्स बाय गिविंग दैट एग्जाम. देयर आर नो लिमिटेशंस व्हेन यू वांट टू डू. So the second condition in which you should not repeat is if your score is stuck. Means if you are a repeater for the first time, second time, you have taken a second drop, third drop, and even if your score is stuck and it is only increasing by 10 to 20 marks, then believe me, it is not your path. आपका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं ही है. अगर आपका स्कोर कंटिन्यूसली 300 आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप रिपीट करोगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप 550 क्रॉस करोगे. आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू. प्रैक्टिकली सोचो, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है ही नहीं. आप ट्राई करो, बहुत से अदर ऑप्शन है. और इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल और आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो प्लीज़ ट्राई फॉर अनदर पाथ. नैरो माइंडेड मत रहो, ब्रॉड माइंडेड रहो. बहुत सारे ऑप्शन है. खुद को डिग्रेड मत करो. यू हैव एंड यू शुड नॉट रिपीट एज इफ़ यू हैव पेइंग कैपेसिटी. अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी हो तो प्लीज़ आप इसी साल कोई भी अच्छे प्राइवेट MBBS कॉलेज में या फिर प्राइवेट PMS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. ओवरऑल ऑल द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द सेम थिंग्स आर बीइंग टॉट. उलट प्राइवेट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो और भी अच्छा होता है, राइट. यू शुड नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर क्योंकि उतनी ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है. यू कैन टेक इन प्राइवेट कॉलेजेस. सो आप में बहुत सारी नई एबिलिटीज़ है, प्लीज़ उससे एक्सप्लोर कीजिए. कंटिन्यूसली अगर आपका सेम स्कोर आ रहा है 300, 320, 320, तो देर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग अनदर ड्रॉप. बट इफ इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 100, लेट्स से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 स्कोर किया था बट नाउ इट इज़ 450, देन देर आर चांसेस कि नेक्स्ट टाइम आप 500 ला सकते हो. Really matters in life is to just go on and not to stay or stuck back somewhere. You just go on, move on, choose your path, and the ways will come out. Ways will come out like branches, and you will never know what the opportunity came. You acquired it, and you became too big. कुछ कंडीशन शेयर की. अगर ये कंडीशंस आपकी सिचुएशन में फिट हो रही है तो इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रिपीट करना चाहिए या आपको रिपीट नहीं करना चाहिए. मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ये दीज आर प्योरली माई ओपिनियंस एंड नॉट टू हर्ट एनीबडीज मोटिव. अगर आप किसी भी कोचिंग क्लासेस से पूछोगे तो वो आपको तो यही कहेंगे कि आप रिपीट करिए. वो तो
बाय सेइंग दैट कि बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज़ है जिन्होंने रिपीट किया, उनकी इतनी अच्छी रैंक आई, उनको इतना अच्छा कॉलेज मिला। बट देयर आर मास नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ टू। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में ऐसे देखा है कि जिन बच्चों ने 3-3 4-4 साल रिपीट किया बट नो गेन। सो ये ध्यान में रख के रिपीट करो कि दिस इज़ द लास्ट चांस दैट यू आर गेटिंग। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान इन माइंड। जब माइंड में एक बैकअप प्लान रहता है देन यू कैन रिलाई ऑन इट और आप उतना कामली पेपर दे सकते हो। बिकॉज फिर आपके पास यही नहीं रहेगा नीट है, नीट इज लाइफ, नीट को लाइफ बना के मत रखो, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान विद यू। Is nearly worthless if you're repeating year by year by repeating the same mistakes which you have done earlier. As one paper cannot decide your future, so the remote control of your life should be in your hand, and you should control what you want to do and learn to fight and strive for your dreams. Learn to take decisions, learn to go forward. तो ठीक है, हमने सोच लिया कि रिपीट नहीं करना है, लेकिन रिपीट ना करें तो लो स्कोर पे एमबीबीएस को भी तो एडमिशन नहीं मिलेगा। व्हाट आर अदर ऑप्शंस दैट वी कैन डू? क्या करना चाहिए? देयर आर अ लॉट मेनी ऑप्शंस। अगर आपने मैथ्स ड्रॉप किया है फिर भी विद अ बायो सब्जेक्ट यू हैव मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन डू एंड यू कैन एक्सेल इन इट, गो फॉरवर्ड। और ये कोर्स 3 साल में करके आप इसमें एमडी करके डॉक्टर से भी ज़्यादा कमा सकते हो। रियलिटी, आई वोंट डिनाई, आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर इज इंडेड अ noble profession, I can say. So let's see other options rather than MBBS which you can do. Be flexible. You can opt for an BMS government college, BMS private. The reality is that in Pune, BMS doctors ज़्यादा कमाते हैं MBBS doctors से। You can go for BMS, you can go for BHMS, BUMS, physiotherapist, can be a speech therapist, you can be an audio therapist, you can opt for BSc nursing, you can opt for paramedical courses, BSc biotechnology, BTech, food technology, pharmacy, and what not. And if you haven't taught maths और आपका math subject था, then you can opt for all the engineering courses and all that courses which require math. So have a broad mind. आपके पास बहुत सारे options हैं and every फील्ड एंड जॉब हैज़ अ स्कोप। और प्लीज़ रिपीट का डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत लीजिए कि इस साल नहीं हुआ, अगले साल तो मैं डायरेक्ट 680+ लाऊंगा, मुझे तो एम्स ही जाना है अगले साल। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपको 200-300 मार्क्स भी नहीं आ रहे। जब आप उतनी मेहनत करो धीरे धीरे मंथ बाय मंथ, जब आपका स्कोर इंक्रीज होने लगे तब आप बोल सकते हो ना कि नहीं मैं अभी एम्स पढ़ूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टाइम रिपीट कि अभी रिपीट कर रहे हैं, एक साल हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। दिस इज नेवर दैट थिंग। And my request to all the students who have decided to take a drug this year is please avoid all those mistakes which you did in your last year. Leave all that pseudo confidence, all that carelessness, all that half knowledge. Try to build your concepts. Focus on physics first. Believe me, guys, MBBS is not easy. Even those 5 years, you have to study continuously and you have to sacrifice many things for your MBBS. All your engineering friends might be enjoying, they would have their own salary, but still you would be studying. But you have to do this, and this is all for the respect that you gain. So have a respect, all the droppers have a respect for the profession that you are going to enter in the next year and respect it. और ये मत सोचो कि एक बार नीट हो गई अब क्या, अब तो कोई कंपटीशन नहीं है, अब तो बस पास होना है। दोस्तों एमबीबीएस में पास होना ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल होता है एमबीबीएस के फर्स्ट इंटर्नल्स पास करना। आओ एमबीबीएस में पता चलेगा तुम लोग। तो जो भी बच्चे, जिन बच्चों का स्कोर बाउंड्री लाइन पे है और आप श्योर नहीं हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं, तो वो उन बच्चों ने क्या करना चाहिए? तो जिन बच्चों के पास भी अगर उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो प्राइवेट सीट लेने की कैपेबिलिटी है, तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड फॉर द प्राइवेट एमबीबीएस सीट। और जिन भी बच्चों को श्योर नहीं है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगा या नहीं, लेकिन वो प्राइवेट सीट नहीं ले सकते, दे कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट एमबीबीएस सीट, तो मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि जब काउंसलिंग शुरू हो तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू रखिए, ताकि अगर एंड में मॉपअप तक भी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले और आपका थोड़े बस से अगर सिलेक्शन रह जाए तो आप उदास मत होइए, आपके पास बैकअप प्लान है। अगले साल आपको पोटेंशियल है कि आप 600-650 अब वो भी स्कोर कर सकते हैं। You have that backup plan in mind, so निराश मत होइए, keep your preparation going, have a believe in yourself, you can do it। और अगर मॉपअप में आपको पसंदीदा कॉलेज मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक साल बच जाएगा आपका। प्लीज़ डोंट एंड अप शोइंग अ रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। अगर अभी आपका स्कोर 550 आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज नहीं मिला और आपने ड्रॉप लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको स्कोर 500 आ रहा है। दिस इज़ नॉट द थिंग, ये ध्यान में रखो।
ऐसा नहीं है कि आपका भी 550 आ रहा है, आपने रिपीट किया तो 650 ही आएँगे। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। सो कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड टर्न योर रिग्रेट इनटू फायर। जो भी सिली मिस्टेक्स आपने इस बार किए, मेक श्योर यू डोंट मेक देम नेक्स्ट टाइम। इन द एंड पीपल विथ हाई स्कोर, जिन्होंने 4 दिया, अभी आपका सिलेक्शन आपको पता है कि श्योर है, आपका स्कोर अच्छा है, उसके हिसाब से आपको बस कॉलेज चूज़ करना है। एंड बिलीव मी, चूजिंग अ कॉलेज ड्यूरिंग काउंसलिंग राउंड्स इज़ द toughest thing for all of you. Toughest, I can say, it is the most confusing thing for all of us. पेरेंट्स और आपके डिसीजन कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऑल इंडिया के काउंसलिंग राउंड होते हैं, स्टेट काउंसलिंग राउंड होते हैं। हाउ टू चूज द परफेक्ट कॉलेज दैट विल सूट यू द बेस्ट, ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू विल श्योरली टेक दिस डिसीजन ग्रेजुअली एज यू विल प्रोसीड थ्रू द काउंसलिंग राउंड। तो व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ योर कॉलेज, इस पर तो एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। लेकिन माई एडवाइस टू यू ऑल इज, काउंसलिंग तो होती रहेगी, आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। मैं ये जो छुट्टी है 3 to 4 मंथ्स की, ये आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगी, इतनी रिलैक्स छुट्टी। अभी आपको कोई भी काम नहीं है, प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस हॉलीडेज इन स्लीपिंग और वॉचिंग वेब सीरीज। एक्सप्लोर कीजिए, खुद को घूमिए, फाइंड योर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ, खुद का ग्रोथ कीजिए, कुछ कुछ डांस प्रिपेयर कीजिए, खुद के लिए कुछ गाना गाइए, और कुछ ना कुछ हॉबी ढूंढ के रखिए, कॉलेज के इंट्रोज में काम आएगा करने के लिए। रैगिंग नहीं होती, लेकिन इंट्रोज तो ज़रूर होते हैं एमबीबीएस कॉलेज में। अपनी हॉबीज जो अपने 2 साल से आपने कुछ भी नहीं किए हैं, 2 साल से जो आपको करने की इच्छा थी, आर्ट वर्क करने की इच्छा थी, या फिर म्यूज़िक, डांस, बीट बॉक्सिंग, जो करने की इच्छा थी लेकिन आप नीट की वजह से नहीं कर पाए, तो सारी हॉबीज़ को रिवाइव कीजिए, घूमिए, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट जो खेलना है वो खेलिए। इतनी अमूल्य हॉलीडेज़ आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगी, बाद में इतना रिलैक्स है ही नहीं आपको। अब छुट्टियों के लिए तरसोगे बाद में, लेकिन आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ एन्जॉय दीज़ हॉलीडेज़। दोस्तों, जिनको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच मोर वीडियोज़ एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।